اور اس وقت مجھے جوائن کیا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر جی ایف ایس بلڈر. کیا حال ہے؟ السلام علیکم منصور بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پلیز. الحمدللہ جی, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیکنڈ پولیس ایکسٹریم ہینڈ گن چیمپئن شپ 2024. تھینک یو سو مچ سر فار انوائٹنگ اس آن دس شو. اینڈ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ ایک اچھا ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. بہت ہی اچھا اور ایک موٹیویشنل ایک پروگرام ہے. اور یہ ایک انسان میں اگر کوئی فیئر ہے, کوئی خوف ہے, تو اس کو بھی ایک دور کرنے کے لیے ایک اچھی ایکسرسائز ہے. تو وہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز کراچی اور پاکستان میں اور بھی فیوچر میں بھی ہونے چاہیے. بالکل, بہت بہت شکریہ منصور بھائی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے ساتھ دیا. تو انجوائے کریں آپ بالکل تھینک یو سو مچ. ہمارے اس ایونٹ کو. اور بہت زبردست ایونٹ ہے, مہمان بھی آ رہے ہیں اور شوٹ بھی کر رہے ہیں, لائیو فوڈ بھی چل رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ منصور بھائی, تھینک یو ویری مچ. منصور احمد خان, مینیجنگ ڈائریکٹر جی ایف ایس بلڈر. سو تھینک یو ویری مچ جی. اور اس وقت بالکل وہ لمحات ہیں جن لمحات میں آنکھوں میں آنسو بھی آ سکتے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ سکتی ہے. اور ہمارے ساتھ بہت سارے جو مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن بھی کرتے رہیں گے. اور اسپیشلی ابھی اس وقت آئی پی او انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن, جو آئی پی او کے پلیٹ فارم سے بہت ہی اچھے گیسٹ عمیر, ایسا عمیر جس نے بہت سارے ملکوں میں جا کے ایس ایس یو کو ریپرزینٹ کیا ہے اور آئی پی او کی کانفرنس میں جا کے کچھ سیکھا بھی ہے اور کچھ سکھایا بھی ہے. تو آور ٹو مزمل جی. Thank you so much. I have alongside with me focal person of Pakistan chapter of International Police Organization, Umair. Umair, obviously it's a great privilege to have you here. Tell us something firstly about this event. Obviously it's a big event happening here in Karachi and it's a big achievement for SSU. How you are looking forward to this event and obviously the future of shooting in Pakistan? Obviously, this event is very commendable, and it has been organized by a special security unit in collaboration with SSU Pakistan and Security and Emergency Services Division. These sort of events should be organized in Pakistan, and in Pakistan, I think and I see the future of shooting. The people are taking very much interest, and as you see, the civilians, the more civilians are here rather than law enforcement personnel. So I guess it's a very bright future for shooting in Pakistan, and these sort of competitions should be held here. Indeed, a bright future for shooting in Pakistan. I have been listening about the International Police Organization since morning. What is it about and how does it work? And I have also heard that Maqsood Memon Saab is the president of Pakistan chapter. So what is this particular organization is all about? Actually, International Police Organization is a non-governmental organization that has been working globally about policing. And it has many, more than I guess 50 plus countries, they are members of this organization. And for Pakistan chapter, Dr. Maqsood Ahmed Saab is the president of Pakistan chapter. And every year they held conferences globally, especially in Europe. So last year when the conference was in Italy, it was the first conference. And our delegation from here, SIN, attended that conference as well. This year, the conference in July was held in Tirana, the capital of Albania. Right, so our delegation from Pakistan Police, especially Sindh Police, under the leadership of Dr. Maqsood Ahmed, we went there, we visited the conference, and we attended that conference and met the police officers globally. The purpose of this IPO is to bring the police officers, the global police officers, in fact, together, and we learn international best practices, we share our experiences, and we learn from their experiences. Thank you so much, and it was a privilege to have you, and I wish you very good luck. Back to the Combox. تھینک یو ویری مچ مزمل. اور آپ کے ساتھ ہے عمیر جنہوں نے آئی پی او کا آپ کو بتایا. ابھی اس وقت میرے ساتھ مجھے جوائن کیا ہے میرے بہت ہی زبردست دوست اور میرے زبردست ہمارے بہت ساری گیم شو بھی کروائے ہیں, انہوں نے بھی کروائے, ہم نے بھی کروائے. تو یہ گیم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو عامر شاہ صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو, خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو راجا صاحب. اور یہ آپ نے جیسے کہا کہ گیم کے حوالے سے, تو یہ میرے لیے پہلا ایکسپیرینس ہے اس طرح کی گیم کا.
वैसे मोस्टली हमने क्रिकेट देखी है, हॉकी देखी है, फुटबॉल देखी है, लेकिन ये आज शूटिंग कंपटीशन जो आपने एसएसयू वालों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अरेंज किया है, और मैं देख रहा हूँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बड़े मतलब एक एनर्जी के साथ अपने टारगेट्स को चिता चिता कर अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। वो आपने देख कितने ट्रिकी स्टेज बने हुए हैं। आजकल जो बच्चे गेम खेल रहे हैं आपको पता होगा, तो वो इस तरीके की गेम है ये। तो आमिर शाह साहब, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और मौसम भी ऐसा हो गया है कि कुछ ऐसा सुनाएं। 6 सितंबर है और योम दिफा है, तो कुछ ऐसा कोई नेशनल सॉन्ग सुना दे हमारे ऑडियंस को भी। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, और मुझे जो अभी टीवी पर देख रहे हैं और जो ऑडियंस हमारे व्यूवर्स अभी इस ग्राउंड में मौजूद हैं, उनके साथ ही हम ये गाना गाएंगे। और ये एक तरीके से हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, और ये जब भी गाते हैं तो जिसको ना भी, जिसने फर्स्ट टाइम भी सुना हो तो ये गाना ज़रूर गुनगुनाता है। जी, फायर शुरू हो चुका है वहाँ पे, और ये एक लेडी कमांडो है ज़बरदस्त, आई थिंक एसएसयू से है जी, एसएसयू की फीमेल कमांडो है जो बहुत ही तेजी से ज़बरदस्त तरीके से अपना निशाना, वो आपने कहा ना कि निशाना नहीं चुकना चाहिए, बिल्कुल, और बड़े कॉन्फिडेंटली अपने टारगेट्स को वो हिट कर रही हैं। जी, बहुत ही तेजी से, और ट्रिकी रास्ता है। इस रास्ते से अगर आपका पाँव बाहर आ गया फिर भी आपके माइनस हो जाएंगे पॉइंट्स। बिल्कुल, और स्पेशली मैं यहाँ पे ज़रूर ये बात करूँगा कि ये इस मेले को जिन्होंने सजाया, डॉक्टर मकसूद अहमद, डीआईजी सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज और उनकी टीम ने, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ज़बरदस्त मेला सजाया हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 6 सितंबर हमारे मुल्क योम दिफा, और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आज के दिन बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होंगे, बहुत सारे इवेंट पाकिस्तान में हो रहे होंगे, लेकिन सिंध पुलिस ने एक ज़बरदस्त इवेंट करके दिखाया, और सेकंड पुलिस एक्सट्रीम अब उस टाइम तक पहुंचने वाली है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप सबको सरप्राइज मिलेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है एसएसयू ने। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान के फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जवान हैं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनके जवान हैं, तो तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल, कोई बात नहीं है, चैंपियन तो एक ही होता है, लेकिन जो हार के जीतता है वो भी चैंपियन होता है। बिल्कुल, और आज मैंने कहा ना, ये आज हारेंगे नहीं, ये सीख कर जाएंगे, क्योंकि आज देखिए ना, ये एक तरीके से हमारे लिए नई स्पोर्ट्स है, और फिर ये दूसरी हमारी शायद लेडी कमांडो है एसएसयू की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की, और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए और अपने टारगेट को अचीव करते हुए बहुत ही तेजी से फायर अपने निशानों की तरफ। क्या बात है जी, जबरदस्त ये चीज, ये मुझे आवाज बड़ी अच्छी लगती है भाई, क्या बात है, एक्सीलेंट। बहुत ही जबरदस्त। बांध कफन अपने सर से हम शौके शहादत साथ लिए हर रोज निकलते हैं घर से, हर रोज हमारी जंग जारी, हर रोज। और शूटर सेकंड स्टेज पे, और बहुत ही तेजी से सिविलियन शूटर, और बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और एसएसयू के जो एसओ हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और उन्हें गाइड भी कर रहे हैं कि बिल्कुल जबरदस्त। ये आवाज अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, क्या बात है।
मुकाबला जारी है और ये SSU की फीमेल कमांडो इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रही हैं। आप कई फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स ने इस इवेंट में कॉम्पीट किया और बहुत ही जोश व जज्बा दिखाई दिया, सभी लोगों का देखने के काबिल था। और अब चूंकि इख्तितामी लम्हात में चल रही है इस वक्त और बहुत ही हमारे मुल्क की इम्पोर्टेंट शख्सियत ब्रिगेडियर तारिक लाखियार साहब तशरीफ ले आए कमेंट्री बॉक्स में, हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। CEO SIEHS 1122 सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये आपका माइक है और आप आ गए माशाल्लाह, खुद एक जबरदस्त स्पोर्ट्समैन है, कैसा लगा ये स्पोर्ट्स? बहुत आला और देख के मुझे खुशी हुई है कि सिंध पुलिस में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के उस माहौल में जहाँ पे हर हमारा ऐरा गैरा पाकिस्तान को बुरा भला कहने की हिम्मत कर रहा है, उसमें एक आला किस्म की एक्टिविटी और ये एक मैसेज भी कि किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ देखा तो 6 सितंबर के दिन हम सारे इकट्ठे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है। ब्रिगेड साहब हमें ये भी बताइएगा आप हमारी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं, उनके साथ हमारे सिविलियंस, क्या कमाल का मुकाबला चल रहा है और ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा इवेंट के जिसने पूरे मुल्क को एक अम्ब्रेला के तले और वो भी चौकंडी लांडी में SSU शूटिंग रेंज पे ला के जमा कर दिया। ये मैंने कहा ना कि ये बहुत आला सोच का मज़र है कि 6 सितंबर का दिन और उसके बाद ये फायरिंग का हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि फायरिंग कंपटीशन इससे और हेल्दी कंपटीशन नहीं हो सकता कि जहाँ पे आप अपने काबिलियत को भी दिखाएं और उस काबिलियत को दिखाने के लिए आपको ऑल आर्म्स और ऑल सर्विसेज टुगेदर, पुलिस है, नेवी है, आर्मी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सारे आए हुए हैं, फॉरेनर्स हैं, हमारे डिप्लोमेट्स हैं और हम कॉरपोरेट के लोग आए हुए हैं। तो ये सारे के सारे ये एक बहुत आला एक बंच है, कहते हैं ना गुलदस्ता है, तो वो सबको कंपटीशन में लेके आना, ये तो उनकी आला सोच है। लेकिन सेकंड पार्ट जो आपने पूछा कंपटीशन का, तो ये हमारी महारत को और हमारे जो काबिलियत है, स्किल्स हैं, इनको महमेज देने वाली, उनको स्टिमुलस देने वाली और उनको आगे बढ़ाने वाला एक मौका है। और इसमें मैं खुद भी गया हुआ था, काफ़ी अरसे के बाद मुझे भी फायरिंग करने का मौका मिला और मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कोई 9 साल के बाद फायरिंग की और शुक्र है कि सारी गोलियां दुश्मन के सीने पे ही लगी, निशाने पे जाके लगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिगेड साहब आपने जैसे कहा कि हम कॉर्पोरेट सर्कल के लोग भी आए थे, कॉर्पोरेट सर्कल में जाने से पहले तो आप ब्रिगेडियर हैं सर, तो इधर तो दिल तो बहुत कर रहा होगा कि इस मुकाबले में पार्टिसिपेट तो मैं भी करूं। मैं सही बताऊं, मेरा दिल इस वजह से मैंने आके वो जो हमारी सेकंड रेंज है उसमें मैंने फायर पहले किया, उसके बाद आके मैंने पार्टिसिपेट किया, तो दिल तो वाकई कर रहा है, अभी भी कर रहा है कि अगर मेरी यूनिट होती या मेरे और जवान मेरे साथ होते या बल्कि अगर हम ये आपका इंटरव्यू ख़त्म हो तो हम दोनों चलते हैं एक टीम बना के। सर मैं तो वही टीम होगी आपके साथ कि आप आगे आगे लड़ रहे होंगे, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पीछे ही वो चैम्बर भर भर के दे रहा हूँ। इंशाल्लाह वो गोली आप मारेंगे और आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि कौम की सपोर्ट के साथ ही फौज चलती है। नहीं सर, कौम की सपोर्ट हमेशा अपनी फौज के साथ है, इंशाल्लाह अपने जवानों के साथ है, उन शहदा के साथ है कि जिन्होंने जब से ये मुल्क बना है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवानों को सलाम है और सारे शहदा को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इस सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप के जरिए हमने उन सबको खराज तहसीन पेश किया। अल्फाज से खराज तहसीन पेश करना तो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये मौका है तो हम उनको अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने तहे दिल से, अपने इस पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनको उनके दर्जात के लिए अल्लाह ताला से दुआ तो है ही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी जानें कुर्बान नहीं की, उन्होंने पूरी कौम के लिए मिसालें बनाई। बिल्कुल सही और अल्लाह ताला हमें आप मेरे साथ यहीं पर ही मौजूद रहेंगे, हम सीधे चल रहे हैं मुजम्मिल के पास। थैंक यू सो मच नसीम भाई। और कराची के महाफिजों के लीडर
जावेद आलम ओडो साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और हम कहाँ मौजूद हैं ये जियो सुपर के नाज़रीन को बिल्कुल पता है कि हम इस वक्त शूटिंग रेंज में मौजूद हैं, जहाँ पर एक्सट्रीम पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हो रही है। और जावेद साहब, मकसूद साहब, ये वो लोग हैं जिनका बड़ा अहम किरदार है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने में, और अब ये कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होने की तरफ है। जावेद साहब, सबसे पहले खुशामदीद आपको। इस इवेंट को करवाने के लिए मकसूद साहब, आप और जितने भी लोग जिन्होंने किरदार अदा किया, अब ये इवेंट चूंकि इख्तिताम की तरफ है, क्या फीडबैक अब तक आप यहाँ पर पहुंचे तो आपको मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सब पार्टिसिपेंट्स को इस कामयाब टूर्नामेंट पे मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हिस्सा लिया। बुनियादी तौर पे हेल्दी एक्टिविटीज़ जो शहर में हम फ़रोग देना चाहते हैं उसका हिस्सा है, और क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये फायरिंग और शूटिंग एक लाजिम मलजूम हिस्सा है, और हमारा ये टूर्नामेंट तो ख़ास तौर पे हमारा ट्रेडिशन बन गया है, तो बहुत अच्छा क्या है। ऑल हेड्स ऑफ टू मकसूद और टीम जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। 150 से 150 से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया है, जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हैं, और काफ़ी पार्टिसिपेशन वेरीड है कि आईबी से भी है और कस्टम्स भी, और ज़ाहिर पुलिस की अपनी टीमें हैं। तो आई विश देम द बेस्ट के ये टूर्नामेंट इंशाल्लाह जो हेल्दी एक्टिविटीज़ के जो हम फ़रोग चाहते हैं, और दूसरा ये कि जो शूटिंग है तो इसका भी जो कल्चर है कि वो सेफ़ एंड सिक्योर माहौल में इसमें ये इस तरह के टूर्नामेंट को करवाना, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा ट्रेडिशन है और इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। जावेद साहब, आपको बताता चलूं कि जियो सुपर पे सुबह से दुनिया भर से लोग इस इवेंट को देख रहे हैं। इसका मतलब पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में गया है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, यंगस्टर्स की बड़ी तादाद है, लेडीज़ की पार्टिसिपेशन है, एक बड़ा इवेंट हो गया है सेकेंड सीज़न ये इख्तिताम की तरफ है। कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें मज़ीद नौजवानों को कि ये कितना हेल्दी स्पोर्ट्स हो रहा है? देखिए, जो गन है इसकी ज़रूरत ज़रूरी नहीं कि अपनी आपकी प्रोटेक्शन के अलावा स्पोर्ट्स के पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है, और इसमें हम कहते हैं कि जो सेफ्टी रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर कोई ये शौक़ अपनाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बेदरीग इलीगल इलिसिट वेपन का जो शहर में एक माजी में कल्चर रहा है उसको भी हम डिस्करेज करना चाहते हैं कि आपने अगर शूटिंग करनी है तो बिल्कुल सेफ्टी रूल्स के मुताबिक स्पोर्ट्स में करें, और अपनी एनर्जी को बाकी एक्टिविटीज़ जो गलत किस्म की है उसमें ज़ाया न करें। सर, ये एसएसयू की काविश है, और एक ऐसे मौके पर 6 सितंबर जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं, पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा अहम दिन है ये हमारे लिए। आज के दिन ये इवेंट होना कितना ज़्यादा आप समझते हैं मोटिवेटिंग है और प्रोमोटिंग है शूटिंग जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज यौम शहदा भी है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मुख्तलिफ का पुलिस का हमारा अगस्त में आता है, लेकिन ये पूरे नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, और शहदा को हम खराज अकीदत पेश करते हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो शहीद हुए हैं आर्म फोर्सेस में हो या पुलिस फोर्सेस में हो, वो इसी तरह गलत किस्म की शूटिंग में उनकी शहादत होती है, तो हमें उनको भी जहन में रखना चाहिए। और इसकी जो इलीगल यूज़ है इलिसिट वेपन्स का, उसके हवाले से भी शहरों को एक आपके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसको कर्व करना चाहिए, और उसकी बजाय आप हेल्दी एक्टिविटीज़ जिस तरह हैं उसमें आएँ। सिंध पुलिस, अगर मैं कराची पुलिस की बात करूं तो 1000 के करीब हमारे शोधा हैं जिन्होंने इस शहर के अमन के लिए कुर्बानी दी है, और मैं समझता हूं इस शुरू से अभी तक 9 हमारे पुलिस अफसरान शहीद हो चुके हैं, तो उनको भी एक तरह से हम याद करेंगे यौम शोधा पे, और इस टूर्नामेंट के हवाले से भी, और ताकि हम जो इस तरह मुल्क दुश्मन अनासर हैं, कानून शिकन जो लोग हैं,
उनके साथ कौमी तौर पे न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट बल्कि आम शहरी को भी हम तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस सर। ये इन लोगों की काविशें हैं जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल किया है। बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू मुजम्मिल, जो बात कर रहे थे कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो साहब से, और इस वक्त मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है हमारे मुल्क की हर दिल अजीज शख्सियत, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, और इनके तज्जिए ख़ास तौर पे पूरे मुल्क में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं वो बहुत पसंद की जाती है, और द वन एंड ओनली सिकंदर बख्श साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सिक्कू भाई। थैंक यू, आपने इतना ज़बरदस्त मुझे इंट्रोडक्शन कराया, हर दिल अजीज, तो थोड़ा सा नहीं वो लोग पसंद नहीं जब आप करते। वो पहले की बात थी टीवी पे बैठने के बाद। थैंक यू वेरी मच। देखिए आज डिफेंस डे है, तो हमारे साथ मकसूद साहब भी हैं DIG, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी आज डिफेंस डे है, और ये जो वर्दी है इससे रोशन धरती है, ये याद रखिएगा, इस वर्दी से हमारी धरती रोशन है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि ये जो वर्दी है इससे रोशन धरती है। तो हमारे सारी पुलिस को लुक आफ्टर करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बंदे हैं। जब भी स्टेडियम पे मैच होता है मैं इनको बहुत एक्टिव देखता हूँ, तो आके सब कंट्रोल करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो ही इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन, वेरी इंप्रेसिव, बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और जिस तरह का आपने अरेंजमेंट किया है इट्स एक्सीलेंट। और आपको ये आइडिया आया या पहले से ही था? ये आप लोग क्रिकेट का मेला सजा के सारा क्राउड खुद लेके जाते हैं, हमने कहा थोड़ा क्राउड हम खुद इधर भी अट्रैक्ट कर लें, तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से पाकिस्तान की तमाम जो पुलिस फोर्सेस हैं वो, और बाकी जो इदारे सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ पे हैं, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो सिविलियंस जिनको शौक़ है शूटिंग का, उन सबको हमने इकट्ठा किया है। यहाँ पे इकट्ठा होना ही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, जो कि जियो सुपर के तहत हम पूरी दुनिया को देना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कौम इतनी अच्छी स्पोर्ट को इतने डिसिप्लिन के साथ कर रही है, और एक दोस्ती का मैसेज दे रहा है। मगर दुश्मनों के लिए उतना ही ख़राब मैसेज है कि इधर देखेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं बिल्कुल, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दोस्त नहीं है। ये तो मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं सुनना चाहता, तो आप मुझे कह दें जो कहना है, मगर पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता। सर वेरी वेल, इज़ इट पॉसिबल कि आप कोई ऐसा क्लब बनाए जहाँ पे हर कोई शहरी आए, कोई फीस दे और आके अपनी प्रैक्टिस करे? इज़ देयर एनी चांस कि इस तरह का कोई क्लब टाइप की चीज़ बना दें? जी, ये जो हमारा सेकंड इवेंट चल रहा है, इसके तवस्सुस से मैं तमाम पब्लिक को, पाकिस्तान की जो कराची के सिटीजन्स हैं, उनको दावत देता हूँ कि यहाँ पे हम शूटिंग क्लब बनाने जा रहे हैं। तो जिसको भी उसका वेपन है और वो लाइसेंस है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इज़ मोर देन वेलकम। SSU की शूटिंग रेंज के साथ राब्ते में रहे, और हम उनको ट्रेन भी करेंगे और अगले कंपटीशन के लिए तैयार भी करेंगे। अच्छा, मगर ये जो एरिया है थोड़ा सा दूर है, इज़ इट पॉसिबल कि जो स्टेडियम के बराबर में आपकी जगह है उधर कोई ऐसी बिल्कुल, चीज़ बना दी जाए? तो वहाँ पे हमारी इंडोर शूटिंग रेंज है, इनिशियल जो ट्रेनिंग होगी वहाँ पे होगी। जो प्रोफेशनल के लिए हम इस रेंज को डेडिकेट करते हैं। प्रोफेशनल मगर्स जैसे अभी शूटिंग हम कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल नहीं है। अगर आप 70 राउंड्स फायर कर रहे हैं, 80 राउंड्स एक वेपन से, तो वो उसकी जो हैंडलिंग है, जो टाइम के साथ मैचिंग है, वो आम शूटर नहीं कर सकता। तो ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, इस पूरी रेंज को कंप्लीट करना ही बहुत बड़ी बात है। मगर जो वेपन है वो हर एक के पास तो नहीं हो सकता ना, लोगों के पास नॉर्मल वेपन्स होते हैं। जिनको शौक है, जैसे अच्छी गाड़ी रखने का शौक होता है, तो उसी तरीके से अच्छा वेपन रखना, जिसको शौक है उसी को उसकी नॉलेज है, और वही यहाँ पे आता है। इनमें से सारे लोग वही हैं। मेरे पास भी लाइसेंस है, मेरे पास भी शौक है, मगर मैं घर के अंदर छुपा के रखता हूँ। देखिए मुझे माय फादर इन लॉ वाज अ DIG, और उन्होंने मुझे उसी वक्त बोला, लाइसेंस बना के मेरे हाथ में दिया, और बोला सिकंदर कैरी ना करना ज़्यादा। इफ़ यू कैरिंग इट, इसका मतलब है कि आप निकालेंगे तो दूसरा भी आप पे रिएक्ट करेगा। तो आप लोगों को भी एडवाइस करूंगा कि घर में रखें, आराम से रखें। बट दैट्स योर पर्सनल सेफ्टी। अगर आप आपकी नॉलेज है उसकी, और आप उसको अपने हिफाजत के सर आप एक क्लब बनाएं जहाँ पे सबको एजुकेट करें हाउ टू यूज दैट वेपन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है कि जो गार्ड्स होते हैं वो ऐसे करके वेपन दे देते हैं, तो हम उनको इसी भी नॉलेज नहीं है। वो उसका मकसद यही है कि वो वहाँ शूटिंग रेंज पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करेंगे। अगर उसको ज़्यादा उसके शौक है और मज़ीद उससे आगे बढ़ना है, तो ये उसके लिए प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड फॉर एवरी सेशन। शिकू भाई एक सेकंड, आप मेरे साथ ही बैठेंगे। इट्स ओवर टू यू मुजम्मिल। थैंक यू सो मच नसीम भाई। इस वक्त मेरे साथ साबिक IG सिंध कलीम इमाम साहब मौजूद हैं। कलीम साहब वेलकम इस शानदार इवेंट में, और यकीनी तौर पे मज़ा आ रहा होगा। आपके लिए तो पुराना है, जिन लोगों के लिए नया है उनके लिए क्या कहेंगे?
سب سے پہلے تو مقصود میمن صاحب اور CCPO اور IGCN کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ایک بہت زبردست پروگرام انہوں نے آرگنائز کیا ہے اور بڑا لانگ اسٹینڈنگ یہ ڈیزائر تھی کہ پولیس آفیسرس جو کہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہیں پاکستان میں, ان کا ایک شوٹنگ کمپٹیشن ہونا چاہیے, ان کی ڈرلز مسکٹری اس میں امپرومنٹ لانی چاہیے. تو یہ سیکنڈ ایکسٹریم شوٹنگ کمپٹیشن جو ہے آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو گو اے لانگ وے, جہاں لوگوں کو احساس ہوگا خاص طور پہ لا انفورسمنٹ آفیسرس کو. اچھا سائن یہ ہے کہ سویلینس کی ایک بڑی تعداد یہاں پر انٹرسٹ شو کر کے آئی ہے, ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ایز این انکریجمنٹ کہ جو لوگ اسلحہ رکھتے ہیں چاہے سولینز ہوں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویپن کی اہمیت, اس کو استعمال کرنے کا طریقہ, اس کی پراپر SOPs وہ ان کو معلوم ہونی چاہیے. پولیس آفیسرس کا اگر کوئی مقابلہ ہو ویپن لے کے آئیں اور ان کا ساتھ دیں, اور اگر انہوں نے جو ہے کسی اور کی مدد کرنی ہے تو بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو سٹیزنز اینڈ سویلینس آر آل پولیس آفیسرز, اور وہ ہاتھ بٹاتے ہیں پولیس آفیسرز کا لا انفورس کرنے میں. بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ جو ان کے پاس ویپن ہے اس کی کیا SOP ہے. سر ظاہر ہے آج ایک بڑا دن ہے, 6 سپٹمبر, ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں آج کے دن. آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں, آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور آج اسپیشلی یہ ایونٹ ہو رہا ہے, اس سے کیا پیغام جا رہا ہے دنیا میں, کیونکہ انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس بھی یہاں موجود ہیں؟ دیکھیں 6 سپٹمبر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا ایک بڑا یادگار دن ہے, اور آرم فورسز کی کنٹریبیوشن, لا انفورسمنٹ کے جو آفیسرز ان کی شہادتیں ہوئی ہیں, ان سب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور دے لیڈ ڈاؤن دیئر لائف سو وی آل میں لیو ان پیس. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی جو باہر سے بھی لوگ آئیں ان کو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ملے گی کہ پاکستان کا کیا معیار ہے. پاکستان کی جو پولیس فورس ہے اور سیکیورٹی آرگنائزیشنس ہیں, یہ دنیا کی وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ایکچولی کمبیٹ کر رہی ہے ٹیررزم کو اور کرمنالٹی کو لڑ رہی ہے. بہت سے ممالک کی جو پولیس ہے وہ ٹریننگ لیتی ہے that they haven't undergone this rough treatment جو کہ ملتا ہے آپ کو ڈاؤن آن دا اسٹریٹ اور جو چیلنج آیا ہوا ہے. تو ہماری وہ فورس ہے جو کہ بیٹل ہارڈن ہے, ان کو پتہ ہے کہ فائرنگ کیسے ہوتی ہے, کب ہو رہی ہے, اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے, اور ان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ شہادتیں ہیں. اس موقع پہ میں بتاتا چلوں کہ پولیس کے تقریباً 8,000 کے قریب اس وقت شہید ہیں, جس میں IG سے لے کے سپاہی اور خاتون پولیس افسر بھی اس شہادت میں شامل ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہم میں نہیں رہے اور کل تک ہمارے ساتھ تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرواہ نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے شہر کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان دی. تھینک یو سو مچ. بالکل شہیدوں کو ہمارا سلام ہے, اور اسی طریقے کے ایونٹ یقینی طور پہ پاکستان کا ایک ایسا امیج اجاگر کریں گے دنیا میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. بیک ٹو دا کام باکس. تھینک یو مزمل. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کتنا ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جب ہم آئے تھے, جب ایونٹ شروع ہوا تھا تو ٹیمز علیحدہ علیحدہ کھڑی تھیں. اب کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کہ کون سی ٹیم اور کون کس ٹیم کا ممبر ہے. سب اس طرح گھل مل گئے. IB اس وقت پولیس کے ساتھ ہے, تو پولیس اس وقت آرمی کے ساتھ ہے. تو سب ایک ایسے ماحول میں اس ایونٹ نے سیکنڈ پولیس ایکسٹریم ہینڈ گن چیمپئن شپ 2024 نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا اور سب کو موقع دیا کہ آپ اپنے سکلز کا مظاہرہ بھی کریں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ایک محبتیں ہیں, جو ایک پیغام اس 6 ستمبر پر ہم نے ساری دنیا کو دینا ہے, اس پیغام کو ذرا مؤثر انداز میں ہم نے پیش کرنا ہے, جو ایک اس وقت کی ضرورت دکھائی دیتی ہے. اور اس سلسلے میں سندھ پولیس اور SSU جو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے اس نے بہت ہی کمال کا کام کیا, سیکنڈ ایڈیشن کیا. اور اس سیکنڈ ایڈیشن میں ہم نے دیکھا کہ کونسل جنرل آف رشیا مسٹر الیگزینڈر بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دیے, اور کئی فورن پلیئرز نے آ کے پارٹیسپیٹ کیا, کئی فورن ڈگنیٹریز اس ایونٹ کا حصہ بنے. اس چیمپئن شپ میں ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ سیفٹی کو ایک خاص طور پہ پیش کیا گیا. یہاں پر ایک شخص, چاہے وہ نئے لوگ آئے ہوں یا پرانے لوگ ہوں, سب کو پہلے اویئرنیس دی جاتی ہے
कि आपने गन रखनी कैसे, लेके कैसे चलना है, मोस्टली लोग जानते हैं, इनके अंदर सबको अवेयरनेस है, लेकिन जैसे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो सिखाने के लिए हैं। हम स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में जाते हैं, हम जाके स्विमिंग सीखते हैं, वहाँ क्रिकेट की कोचिंग होती है, फुटबॉल की कोचिंग होती है, हर खेल की होती है। तो जिस तरह भी नसीम बात कर रहे थे कि हमें चाहिए कि जिस तरह मैंने डीआईजी साहब से बात की, मकसूद साहब से, कि हमें एक क्लब बना के रखना चाहिए और हर पेरेंट का ये काम होना चाहिए बच्चों को लाके उसमें थोड़ा सा उसको एजुकेट कर दे। शिकू भाई, सारे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो है वो एक अम्ब्रेला के तले जमा हैं। आईबी भी आए, आर्मी भी आए, एयरफोर्स भी आए, नेवी भी आए, मोटर पुलिस भी आए, सिंध पुलिस भी आए, पंजाब पुलिस भी आए, जितने हमारे फोर्सेस हैं वो सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपस का इंटरेक्शन का कितना बड़ा जरिया है? बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये जो वर्दी है इससे रोशन धरती है। तो हमारी जो मैं कई ऐसी एसोसिएशन में भी रहा हूँ, जैसे कि बिकाटी है, बिन कासिम एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसका भी मैं वहाँ पर मेंबर रहा हूँ। और वहाँ पर भी जो जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब होते हैं, उन्होंने भी हमेशा पुलिस और रेंजर से ये कहा है कि आप लोग के मौजूदगी से हमें बहुत सिक्योरिटी होती है। मैं इस बात पे फर्मली बिलीव करता हूँ कि उनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है और हमें ज़हनी तौर पे सुकून होता है कि यहाँ पर नाके लगे हुए लोग हैं। तो दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ। और पाकिस्तान का, जैसे मैंने कहा, कि ये वर्दी है जिससे रोशन धरती है। ये मेरी एक एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी शोधा हैं उनको एक ऐसी नंबर प्लेट दी जाए जिस तरह कि अमेरिका में वेटरन लिखा होता है, उसमें लिखा होना चाहिए शहीद, और फिर वो गाड़ी का नंबर हो, ताकि हम उनको सलाम कर सकें, हमें पता हो कि ये शहीद की फैमिली जा रही है। और ये चैम्पियनशिप भी उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का एक हिस्सा है। ये सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 होती 6 सितंबर को इसलिए है कि हम अपने शोहदा को याद करें, हम उनकी याद में अपनी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जमा करें, उनके साथ अपने सिविलियंस को जमा करें, पूरा मुल्क जमा होके उनको याद करे। और इस हैंडगन चैंपियनशिप के थ्रू भी एक खराज तहसीन पेश करने का अनवर भाई बहुत जरिया ही है। सर बिल्कुल ऐसे है। देखें, जब से दहशत गर्दी बढ़ी और पिछले जो 20 सालों से हमारे मुल्क में सूरत हाल है, हर साल हम अट्यून तो हो चुके हैं इन कुर्बानियों से, लेकिन हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हज़ारों की तादाद में हमारे शोहदा पुलिस के, लेवीज़ के, आर्मी के, एफसी के, और अब भी हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ छोटे छोटे हमारे पास मौके हैं कि हम जिसमें मिल बैठते हैं और उस टेंशन से जिसमें हम रह रहे हैं और जिस तरीके से हम बॉर्डर्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स हैं जो हमें एक मौका देते हैं कि हम उस इन्वायरमेंट से निकल के एक सेफ इन्वायरमेंट में पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इवेंट्स है जिसमें हम अपने शोहदा को भी याद करते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं और उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पे भी बुलाते हैं। तो ये इवेंट है, ये याद रहेंगे इंशाल्लाह। अगले साल भी आप हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हम इनके इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं आस्ता आस्ता, आप देख रहे हैं। तो अब क्या लग क्या रहा है वैसे अनवर कहतरान साहब, कमांडेंट एसएसयू के जो मेज़बान हैं, आप इस इवेंट के मेज़बान हैं, क्या लग क्या रहा है? एसएसयू के चांसेस हैं? क्या लग रहा है अपनी टीम से? एसएसयू की तो मैंने आपको एक डिटेल बताई थी, आप उस वक्त नहीं थे यहाँ पे। तो मोर देन 37 हमारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो इंटरनेशनली भी नाम आ चुके हैं, चाहे नेवी के कंपटीशंस थे उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब दुबई में अभी भी हमारी टीम हर हफ्ते यहाँ प्रैक्टिस कर रही है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दुबई स्वॉट चैलेंज, दैट्स इन जनवरी। अनवर साहब, एक मेरा सवाल है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, आर दे प्रोफेशनली योर ट्रेन्ड पीपल और कोई सिविलियंस भी आए हुए हैं? इसमें जी हमने कैटेगरीज रखी थी जी। लॉ इन्फोर्समेंट आर सेपरेट, सिविलियंस आर सेपरेट, they have more practice. Yeah, they have more practice and every organization has sent the best officers. क्लब बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो। सर क्लब बने बहुत ज़रूरी है, ये भी एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी, क्योंकि शौक की बात है। अब जिसको गन्स का शौक है, फायरिंग का शौक है, आप ये नहीं कह सकते आप उसे कि मेरे साथ आके क्रिकेट खेलें, वो उसके लिए ये स्पोर्ट्स है। सबसे इम्पोर्टेंट सर ये जो मुझे अनवर साहब नजर आता है ना कि उसको हाउ टू हैंडल द वेपन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने गार्ड्स को देखा है कि वो गलत तरीके से उनको हैंडल करते हैं। एक सर हमारा ये जो आप चौखंडी हेडक्वार्टर देख रहे हैं, इसका फ्यूचर का प्लान है, इंशाल्लाह अल्लाह में इसमें कामयाब करेंगे। इसे एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं सिक्योरिटी की। तो जितने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, देयर आर मोर देन 60,000 सिक्योरिटी गार्ड्स इन कराची। तो इन कराची दे आर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर अनट्रेन्ड, सिवाय वो जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, एसएसजी से रिटायर्ड हैं।
جو لوکل گارڈز ہیں جو بالکل آپ کو عام جگہوں پہ نظر آتے ہیں, وہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ اسے گن دے دیتے ہیں, 1 دن کی ٹریننگ دیتے ہیں اپنے گارڈ سے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی CCTV فوٹیجز آئی ہیں ایکسیڈنٹل فائرز کی, گارڈز غلط فائر کر دیتے, بیٹھے ہوتے ہیں, موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹریگر دب جاتا ہے. تو یہ بالکل ایک بہت بڑا گیپ ہے میرے خیال میں ہمارے پاس, کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز ہیں ان کی ٹریننگ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اور جیسے آپ کا سوال تھا سر پہلے, سیویلینز اور لا انفورسمنٹ کیا اکٹھے کھیل رہے ہیں, دے آر سیپریٹ. سیویلینز 120 نے رجسٹرڈ کیا, 109 ان میں سے پلے کیا. لا انفورسمنٹ 48 فرام ڈفرنٹ آرگنائزیشنز دے رجسٹرڈ اینڈ 39 آف دیم پلیڈ ہیئر. اور فیمیل 7 نے رجسٹرڈ کیا, 7 نے پلے کیا. ان کا الگ انعام ہے. 7 ہیں جی, تو وہ کسی اس کی لا انفورسمنٹ کے سر موٹر وے سے آئی ہیں. کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے جیسا سیویلین نہیں ہے جو خاتون آ کے. سر سیویلین چونکہ سیکنڈ ٹائم تھا, شاید اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, اب تو اور زیادہ اویئرنیس. I can assure you next time آپ یہ 1 مہینہ پہلے سے پبلسٹی کریں, خواتین کو بھی بولیں, let them come. اسپورٹس سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں وہ ہمارے پاس اسپیشلی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ آئیں. نہیں, مجھے مل گئی ہے دعوت. اچھا, آپ کو دعوت مل گئی, تو آپ دوسری دعوت ہے, آپ 2 دفعہ آئیں گے. 2 دعوت, مگر میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری پبلک ہے نا ان کو بھی ٹرین ہونا چاہیے, اور اٹ ول بی اے گڈ آئیڈیا. سر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ گن دیں اور گن کے ساتھ ان کو رسپانسبلٹی بھی سکھائیں, ڈسپلن سکھائیں اور سیفٹی سکھائیں. اور ہم ایک ورکشاپ کرتے ہیں 1 ڈے کی آرگنائزیشنس کے لیے, تو میں بھی آرگنائزیشن آنا چاہے, ہم انہیں والنٹیئرلی سر ہمارے ٹرینرز ہیں وہ سیفٹی پہ ان کو بریفنگ. سوری میں لے رہا ہوں سے, یہ بتائیں کہ ایسا کبھی پروگرام بنایا کہ کالجز میں جا کے لیڈی, میں خاص طور پہ خواتین کی بات کروں تو لیڈی کالجز میں جائیں اور ان کو بولیں کہ جی ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے اور آپ کے آ کے ٹریننگ دیں گے, سم تھنگ لائک دیٹ. سر بہت اچھا آئیڈیا. میں آج ابھی جو آپ نے بات کی نا, مجھے یہ آئیڈیا ہے کیونکہ ہم بار بار اپنے پاس کورس کرا رہے ہیں. اب میرے خیال میں سب سے اچھا یہ ہوگا ہم جا کے بتائیں بڑے بڑے کالجز, اسپیشلی کالجز میں جہاں پہ بچیاں ہماری پڑھتی ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا ٹرین ہو جانا چاہیے. بالکل. اور تو اگر وہ ٹرین ہو جائیں تو لائسنس بھی دیں. سکو بھائی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ نے بھی کی ہوگی, ہم نے بھی کی. پہلے کالج کے دور میں NCC ہوا کرتی تھی اور وہ اویئرنیس دے دیا کرتی تھی کافی حد تک. 15 دن کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جو اب بالکل ختم ہو گیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, مگر جیسے انور صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ذہن میں بھی یہ آئیڈیا آ گیا کہ بچوں کو جا کے وہاں جا کے سکھانا چاہیے. کوئی ایسی جو کہتے ہیں نا موبائل ٹائپ کوئی رینج ہو. سر ہمارے پاس وی ویری گڈ 2 بسز ویل اکوپڈ یہاں کھڑی ہوئی ہیں, وہ ہم اس لیے جاتے ہیں, ایونٹس بھی کور ہوتے ہیں, اس میں کنٹرول سینٹر بھی ہے, تو ہم کسی بھی کالج جا سکتے ہیں. آپ کا آئیڈیا مجھے بڑا اچھا لگا. یہ اس میں کہ بچوں کو ایجوکیشن ہوگی, بچوں کو ہینڈل کرنا آ جائے گا. دیکھیں یہ ایک ایکسائٹمنٹ والی چیز ہے. میں جب چھوٹا تھا تو میرے اتنے ایکسائٹمنٹ تھی کہ مجھے پسٹل چاہیے, کہیں سے مل جائے. جب مجھے مل گئی تو میں اس کے لیے گھومتا تھا ایسے کر کے نا, تو بعد میں شوق ٹھنڈا ہو گیا, عمر کے ساتھ وہ ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ بچوں کو شروع میں مل جائے موقع تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ماں باپ کا جو پسٹل رکھا ہے ان کے گھر میں رکھا ہے وہ اس کو ٹچ نہیں کرے. سر ٹچ. اوکے, تھینک یو ویری مچ سکندر بخش صاحب, تھینک یو ویری مچ انور کھتران صاحب, کمانڈنٹ SSU, تھینک یو ویری مچ سر. اور زبردست قسم کا یہ ایونٹ اب اختتامی مرحلے میں, لاسٹ کے شاٹ صاحب کیمرے پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد رزلٹ آنے والا ہے, لیکن ہم جا رہے ہیں سیدھے ایک بریک پر.